A very good morning to all of you. This is Professor Yasir Beg from Sagar Institute of Science and Technology, Department of Mechanical Engineering, SysTech. Again, this is the third lecture of our lecture series on engineering thermodynamics. We are going through the cycle of Otto cycle in this lecture. We are undergoing gas cycles, and today's topic is Otto cycle. So let's start. Up till now what we have covered is, first of all, we have started in our first lecture with the definition of power cycles and what are power cycles, and then after defining the power cycles, we have classified the power cycles into vapor cycle and gas cycle. So we have explained that what are vapor cycles and what are gas cycles. Vapor cycles are those cycles in which the phase of the what do we call working substance changes during the complete cycle. For some time it stays as liquid, and for sometimes it stays as gas. But there is also one more cycle which is called as popularly gas cycle, and gas cycle are those cycles in which the working substance always stays in the medium of gaseous medium. Okay, so this is what we have covered, and then moving on, we have decided that now we will use the air standard approach. And what was air standard approach? We have assumed some things, that the air will be considered as our working substance in all the time. We are not going to consider the fuel, and we will consider that there are no chemical reactions that the fluid substance is undergoing through, right? And the system will be frictionless. So these are the assumptions that we have made during the consideration of air standard approach. Okay, then in our previous lecture we have started with Carnot cycle, and with the applications of Carnot cycle we have seen that Carnot cycle consists of total 4 processes. The two processes were isothermal compression and adiabatic compression, and then isothermal expansion and adiabatic expansion. So those were the 4 processes involved in the Carnot cycle. Alright, those were the 4 processes involved in the Carnot cycle. After that, the processes that we have seen, we have derived the efficiency of Carnot cycle, and we have explained that the Carnot cycle will have maximum efficiency during among the all cycles, all gaseous cycles. Carnot cycle would be having the maximum efficiency, and we also explained that this doesn't mean that Carnot cycle will be having 100% efficiency, but it means that among all the cycles, Carnot cycle will be giving the maximum efficiency, because we have stated that no cycle in regarding gas cycles will be having 100% efficiency, as some amount of heat will be rejected to the atmosphere also. All the heat that we are providing to the heat engine is not going to be converted into work done. So this was what we have seen up till now in our previous lectures. So moving on with today's topic, air standard Otto cycle. Now, so हमने ये कहा था कि एयर स्टैंडर्ड क्या होता है, तो आपने बताया था कि एयर स्टैंडर्ड सर कुछ अजम्पशंस लेने पड़ते हैं, जैसे कि फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए पूरे सिस्टम के दौरान में, और जो है वर्किंग सब्सटेंस गैस रहेगी यानी कि एयर रहेगी, उसकी स्पेसिफिक हीट में कोई चेंज नहीं आएगा विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, एंड सम मोर अजम्पशंस वर देयर कि उसको हीट सप्लाई करी जाएगी बाय एन एक्सटर्नल सोर्स. ये नहीं मानेंगे कि अंदर कंबशन हो रहा है और उसकी वजह से हीट जनरेट हो रही है, ये अज्यूम नहीं करा जाएगा, राइट? So that was air standard assumptions. And then Otto cycle, now we are starting Otto cycle. So Otto cycle was the first cycle that was ever invented on which an actual heat engine worked. Okay, so the Otto cycle was invented by Nicholas Otto in the who lived between in 1832 and 1891, and he was a German scientist. So he was the first person who actually made a cycle on which a petroleum fuel based internal combustion engine was made, right? And the first engine was not made by Nicholas Otto. इन्होंने पहला इंजन नहीं बनाया था. पहला इंजन किस प्रोसेस पे, किस साइकिल पे वर्क करेगा, वो निकोलस ऑटो ने बताया था. बट पहला इंजन जो बनाया था, इट वाज डेवलप्ड बाय कार्ल बेंज. आपने बेंज मोटर्स का नाम सुना होगा, जो कि बहुत ही पॉपुलर कार मैन्युफैक्चरर्स हैं. उन्होंने कार्ल बेंज, उसके जो क्या कहेंगे, उसके जो स्टार्ट जिन्होंने करा वो एंटरप्राइज, उसके ओनर कार्ल बेंज, उन्होंने जो है फर्स्ट इंजन बनाया था जो कि गैसोलीन पे वर्क कर रहा था, यानी कि ऑटो साइकिल पर वर्क कर रहा था. तो ऑटो साइकिल वाज आल्सो कंसिडर्ड टू बी एयर स्टैंडर्ड साइकिल.
Now, the air standard Otto cycle is the idealized cycle for spark ignition internal combustion engines. अब ये स्पार्क इग्निशन क्या होता है? स्पार्क इग्निशन यानी कि हमने अपने पहले भी पढ़ा है कि दो टाइप के इंजन होते हैं. हीट सप्लाई जब करी जाती है या कंबस्शन प्रोसेस जब करा जाता है इंजन के अंदर, तो दो तरीके के होते हैं, एक SI इंजन्स एंड एक CI इंजन्स. तो SI एंड CI. SI इंजन्स में क्या होता है? SI इंजन्स में जो फ्यूल होता है, उस फ्यूल के अंदर जो इग्निशन प्रोसेस स्टार्ट करी जाती है, इट्स विद द हेल्प ऑफ अ स्पार्क. आप वहाँ पे एक स्पार्क प्लग लगाते हैं, जिस स्पार्क प्लग में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाती है और इलेक्ट्रिसिटी जो है वहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे जो वहाँ पर फ्यूल अवेलेबल है वो फ्यूल आग पकड़ता है, यानी कंबशन स्टार्ट हो जाता है, राइट. एंड कंप्रेशन इग्निशन इंजन वो होते हैं जिसके अंदर आप इतना ज़्यादा फ्यूल को कंप्रेस कर देते हैं कि उसका टेम्परेचर अपने आप ड्यू टू कंप्रेशन ऑटो इग्निशन टेम्परेचर से ऊपर पहुंच जाता है और वो फ्यूल खुद ऑटोमेटिकली सेल्फ इग्नाइट हो जाता है. उसको किसी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती इग्नाइट होने के लिए. सो सच टाइप ऑफ इंजन्स आर compression ignition engines. And Otto cycle is what type of engine? Otto cycle पे जो इंजन वर्क करता है, इट इज़ SI इंजन यानी कि स्पार्क इग्निशन इंजन, राइट. तो लेट्स सी व्हाट आर द डायग्राम्स ऑफ दिस साइकिल ओवर द PV and TS curve. So the processes that are involved in Otto cycle, हमने देखा था कि कार्नोट साइकिल जब हमने पढ़ी थी तो कार्नोट साइकिल में 4 तरीके के प्रोसेस थे आपके. और यहाँ पर भी 4 प्रोसेसेस रहते हैं, कंप्रेशन, हीट एडिशन, देन एक्सपेंशन एंड हीट रिजेक्शन. यही 4 प्रोसेसेस वहाँ थे और यही 4 प्रोसेसेस यहाँ हैं. बट डिफरेंस किस बात का आता है? डिफरेंस आता है कि वो प्रोसेसेस किस तरह से आप अंडरटेक कर रहे हो. जैसे कि यूजुअली हमने देखा है कि जब भी कंप्रेशन होता है तो और जो भी एक्सपेंशन होता है तो दैट इज़ ऑलवेज एडियाबैटिक. जब भी आप कंप्रेशन होता हुआ देख रहे होंगे इंजन में या एक्सपेंशन होता हुआ देख रहे होंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स पीपल वांट दैट दीज प्रोसेसेस मस्ट बी एडियाबैटिक. एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है हम डिफाइन कर चुके हैं. एडियाबैटिक का मतलब है कि नो हीट विल बी ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस. सिस्टम के अंदर से बाहर कोई हीट नहीं जाएगी और सिस्टम के बाहर से अंदर कोई हीट नहीं आएगी, राइट. और कंप्रेशन करते टाइम हम यही चाहते हैं कि कोई हीट ट्रांसफ़र ना हो. क्यों चाहते हैं? इसलिए चाहते हैं कि कंप्रेशन जब हम कर रहे हैं तो हम कोई वर्क दे रहे हैं, उस वर्क की वजह से वॉल्यूम रिड्यूस हो रही है और वॉल्यूम रिड्यूस होने की वजह से प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, राइट. और हम ये चाहते हैं जो भी हम वर्क दे रहे हैं वो पूरा का पूरा क्या करे, कंप्रेशन करके सिस्टम का प्रेशर को इंक्रीज़ कर दे. लेकिन अगर जो है ये प्रोसेस एडियाबैटिक नहीं रहेगा तो व्हाट विल हैपन? द थिंग दैट विल हैपन इज कंप्रेशन तो हो रहा होगा लेकिन कंप्रेशन के अंदर प्रेशर पूरा का पूरा जो आप वर्क दे रहे हैं वो पूरा का पूरा प्रेशर इंक्रीज करने में नहीं जा रहा होगा, कुछ अमाउंट में हीट के फॉर्म में लॉस हो रहा होगा, राइट. तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हीट के फॉर्म में कुछ भी वर्क लॉस ना हो. इसीलिए इस प्रोसेस को पूरा कैसा बनाया जाता है? एडियाबैटिक बनाया जाता है. यूजुअली जो कंप्रेशन प्रोसेस है और जो एक्सपेंशन प्रोसेस है ये ज़्यादातर इंजन्स में आप देखेंगे तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस ही रहता है, ओके. तो यहाँ पे प्रोसेस 1 से 2 जो है हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक रहेगा एंड प्रोसेस 3 से 4 हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक ही रहेगा. 1 से 2 जो है वो कंप्रेशन प्रोसेस रहेगा यानी कि वॉल्यूम रिड्यूस हो रही होगी और प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा होगा. और 3 से 4 हमारा एक्सपेंशन प्रोसेस रहेगा यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रही होगी, एक्सपैंड हो रही होगी सिस्टम की और प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो रहा होगा, ओके. देन रिमेनिंग 2 प्रोसेसेस, प्रोसेस 2 से 3 एंड प्रोसेस 4 to 1. प्रोसेस 2 से 3 हीट एडिशन प्रोसेस. यहाँ भी हीट एडिशन है, कार्नोट साइकिल में भी हीट एडिशन था बट कार्नोट साइकिल के अंदर आपने देखा था हीट एडिशन वाज बीइंग डन एट कांस्टेंट टेम्परेचर बट हियर द हीट एडिशन इज बीइंग डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ज़्यादातर जो साइकिल्स के अंदर आप डिफरेंस देखेंगे कि ऑटो साइकिल कार्नोट साइकिल से क्यों डिफर कर रही है, क्योंकि ऑटो साइकिल में हीट एडिशन कांस्टेंट टेम्परेचर पे था और यहाँ पे हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे. नेक्स्ट साइकिल जो आप देखेंगे डीजल साइकिल, उसके अंदर हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे होगा. उसके बाद जो आप अगली साइकिल देखेंगे उसमें हीट एडिशन किसी और तरीके से हो रहा होगा. सो दैट इज़ द थिंग कि जैसे जैसे हम इस प्रोसेस को चेंज करते जाते हैं तो साइकिल चेंज होती जाती है, ओके. तो प्रोसेस 2 से 3 आपने बताया कि ये क्या है, हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम. एंड प्रोसेस 4 to 1 हीट रिजेक्शन विल बी डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगेन, ओके. सो दीज आर द 4 processes involved in Otto cycle. So this is the graphical representation now of Otto cycle. Graphical representation में आप देखेंगे मैंने 2 कर्व यहाँ पे बनाए हैं, एक PV कर्व है एंड एक TS डायग्राम है,
पीवी कर्व एंड टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम। पीवी यानी कि प्रेशर एंड वॉल्यूम। आप यहाँ देखेंगे यहाँ दो टर्मिनोलॉजी आपको नई दिखाई देंगी, एक टीडीसी एंड एक बीडीसी। टीडीसी मीन्स टॉप डेड सेंटर, बीडीसी मीन्स बॉटम डेड सेंटर। ओके, व्हाट डू वी मीन बाय डेड सेंटर? डेड सेंटर का मतलब कि ये यहाँ पे जाके पिस्टन की औकात हैसियत ख़त्म हो जाती है, इसके आगे मूव नहीं कर सकता। तो दिस मीन्स कि पिस्टन जो है मैक्सिमम इससे आगे नहीं जाएगा, यानी कि जो सिस्टम के अंदर जो मैक्सिमम वॉल्यूम रहने वाली है वो यहाँ तक की रहने वाली है, राइट, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, एंड टॉप डेड सेंटर मीन्स कि पिस्टन इससे आगे कंप्रेस नहीं कर सकता है, यानी कि पिस्टन के अंदर जो मिनिमम वॉल्यूम रहने वाली है वो मिनिमम वॉल्यूम इतनी तो रहेगी ही रहेगी, है ना। इस वॉल्यूम को हम कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। ये जो आपको यहाँ से मैंने दिखाया है, दिस वॉल्यूम विल बी कॉल्ड एज क्लियरेंस वॉल्यूम, राइट, वीसी। एंड ये जो वॉल्यूम रहेगी टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के बीच की वॉल्यूम, ये वॉल्यूम कहलाएगी स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस पूरी वॉल्यूम के अंदर पिस्टन स्वीप कर रहा होगा, पिस्टन विल बी स्वीपिंग थ्रू दिस होल वॉल्यूम, दैट्स व्हाई दिस वॉल्यूम इज नोन एज स्वेप्ट वॉल्यूम, राइट। एंड दिस वाज क्लियरेंस वॉल्यूम। तो द टोटल वॉल्यूम दैट विल बी the system will be containing will be swept volume plus clearance volume. So the total volume of the system would be what? Swept volume and plus clearance volume. Okay, yes, मूविंग ऑन। आप देखेंगे यहाँ पे जो है ये मैंने एक 0.0 मार्क करके रखा है एंड 0.1 2 3 4 देन अगेन 1 एंड 0। तो ये 0 से 1 जो प्रोसेस है दैट इज नथिंग बट सक्शन प्रोसेस। 0 से 1 इज योर सक्शन प्रोसेस। एंड जब वापस ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है 0 से 1 के बाद 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1 एंड देन 1 से 0 दैट इज एग्जॉस्ट प्रोसेस, राइट। तो 0 से 1 के प्रोसेस के दौरान क्या हो रहा है? 0 से 1 प्रोसेस के दौरान क्या हो रहा है कि पिस्टन जो है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक जा रहा है और इस ड्यूरेशन के अंदर इनलेट वाल्व आपका ओपन है जिसकी वजह से फ्यूल जो है वो अंदर आता है, राइट। तो इस अगर आप देखेंगे 0 से 1 के ड्यूरेशन में जो वर्क हमें देना पड़ रहा है एक्चुअली या जो वर्क हमें मिल रहा है एक्चुअली 1 से 0 के ड्यूरेशन में वही वर्क हमें देना पड़ रहा है, राइट। एग्जॉस्ट करने के लिए वही सेम वर्क हमें देना पड़ रहा है। तो दैट इज़ वाई व्हाट डू वी कॉल इज़ कि ये वर्क एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। 0 से 1 वाला और 1 से 0 वाला ये दोनों एक दूसरे को प्रोसेस कैंसिल आउट कर देते हैं और हम इसको साइकिल का हिस्सा नहीं मानेंगे। साइकिल का हिस्सा माना जाएगा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 से 1। दिस इज़ आवर आइडियल एयर स्टैंडर्ड साइकिल। अब 1 से 2 में आपने मुझे बताया क्या प्रोसेस है ये है एडियाबैटिक, यस, एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो यू कैन सी कि कंप्रेशन हो रहा है यानी कि वॉल्यूम रिड्यूस हो रही है। 1 पे वॉल्यूम ज़्यादा थी, 2 पे वॉल्यूम कम है एंड प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है। 1 पे प्रेशर कम था, 2 पे प्रेशर बढ़ चुका है। देन आफ्टर दैट 2 से 3 में जा रहा हूँ। 2 से 3 आप देखिए ये वर्टिकल लाइन आपको दिखाई दे रही है। वर्टिकल लाइन का मतलब क्या है? मतलब ये कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा। वो पैरामीटर जो कि एक्स डायरेक्शन में दिया हुआ है यानी वॉल्यूम, इसमें कोई चेंज नहीं दिख रहा है आपको। और अगर इसमें कोई चेंज नहीं दिख रहा है यानी कि ये प्रोसेस कैसी हो गई? ये हो गई कांस्टेंट वॉल्यूम। और इस प्रोसेस के दौरान आप क्या कर रहे हैं? आप हीट सप्लाई कर रहे हैं। यू आर सप्लाइंग हीट टू द साइकिल, हीट इज बीइंग सप्लाइड, ओके। एंड देन you will reach your maximum pressure and maximum temperature at point 3. This will be your maximum pressure and maximum temperature. And afterwards जब आप यहाँ पे हीट ऐड कर चुके होंगे, यहाँ से यहाँ तक स्पार्किंग हो गई है, कंबशन हो गया है, अंदर का फ्यूल पूरा बर्न हो चुका है, हीट सप्लाई हो चुकी है एंड 3 पे पहुँचने के बाद अब आप क्या करेंगे? आपका पिस्टन वापस टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ चलना चालू होगा एंड दिस विल बी योर एक्सपेंशन प्रोसेस यानी कि वर्क डन प्रोसेस। तो 3 से 4 योर विल बी योर वर्क डन प्रोसेस। इसके अंदर आपको वर्क आउटपुट मिल रहा होगा। योर वर्क आउटपुट विल बी अचीव ड्यूरिंग द प्रोसेस 3 से 4, राइट। और जो प्रोसेस 1 से 2 था इसके दौरान आपको कुछ वर्क देना पड़ रहा था, राइट। तो द नेट वर्क दैट यू आर ऑब्टेनिंग इज वर्क आउटपुट माइनस वर्क इनपुट, ठीक है। दैट द वर्क दैट द सिस्टम इज डूइंग
between process 3 to 4 and the work that you are doing over the system between the process 1 से 2 and the net work that you will be obtaining will be identified by the area enclosed inside this closed loop. area जो कि इस साइकिल के अंदर पूरा भरा हुआ है, इस एरिया को अगर आप कैलकुलेट कर लें तो आपको पता चल जाएगा, क्या पता चलेगा कि कितना अमाउंट में वर्क डन हुआ होगा इस पूरे प्रोसेस के दौरान, नेट वर्क जो आपको मिला है, राइट। देन अगेन 421 इज योर आइसोकोरिक या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, और इसके ड्यूरेशन में भी कोई वर्क नहीं होगा क्योंकि वर्टिकल लाइन है। आपको मालूम होगा आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हमने कई बार पढ़ा है कि आइसोकोरिक प्रोसेस हो रहा होता है तो द वर्क डन इज जीरो। व्हाई? बिकॉज द वॉल्यूम इज सेम एंड वर्क डन इज प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। सो सिंस द वॉल्यूम इज सेम तो देयरफॉर change in volume is zero, and since the change in volume is zero therefore the work done during this process is zero. Okay, so if we will consider its TS diagram, अगर हम इसका TS diagram देखेंगे तो TS diagram पे आपको दिखाई दे रहा होगा प्रोसेस 1 से 2 में वर्टिकल लाइन है। अब यहाँ वर्टिकल लाइन क्यों है? Why? Because the thing is कि ये प्रोसेस कैसा रहा है? आइसेंट्रोपिक रहा है, और हमें मालूम है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, दैट इज वाई दिस वर्टिकल लाइन इज बीन अचीव्ड। और फिर प्रोसेस 2 से 3 आपका आइसोकोरिक प्रोसेस था। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो, यानी कि इस प्रोसेस के दौरान आपकी कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आया है, बट यहाँ पे जो है आपने हीट सप्लाई करी थी, इसी वजह से आपका टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है आपको और एंट्रोपी भी बढ़ती हुई दिखाई दी है। देन 3 से 4 अगेन वॉज आइसेंट्रोपिक, दैट इज वाई नो चेंज इन एंट्रोपी इज नोटिस्ड, बट इट वॉज सच दैट द आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हुआ देयर, है ना। तो एक्सपेंशन हो रहा था इसलिए टेम्परेचर में आपको गिरावट दिखाई दी। टेम्परेचर वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 0.3 टू 2.4 एंड 0.4 से वापस 0.1 तक आते में आपने देखा कि अगेन चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो। ओके, एंड दिस प्रोसेस वाज आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, तो द नेट हीट सप्लाइड टू दिस इंजन इज द एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस साइकिल. This is the net heat supplied. Okay. Now note, it can be observed that the work done during the process 0 to 1 is exactly balanced by the work done during 1 से 0. ये बात जो मैंने इस स्लाइड पे सबसे पहले कही थी. Hence the purpose of thermodynamic analysis we need to consider only cycle 1, 2, 3, 4 which is air standard Otto cycle, right? This is what I said कि भाई जैसे आपका 0 से 1 प्रोसेस और 1 से 0 प्रोसेस, ये आपका सक्शन और एग्जॉस्ट प्रोसेस है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसीलिए जो इफेक्टिव साइकिल होगी वो 1, 2, 3, 4 होगी और आप इसी को ही कंसिडर करके चलेंगे पूरी एनालिसिस के दौरान. ओके, मूविंग ऑन. ये मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया है आपके लिए, बहुत अच्छा रहेगा आप भी इस तरीके से अगर सारी साइकिल्स के लिए टेबल बनाएं तो दिस टेबल विल बी वेरी यूज़फुल. इसके अंदर मैंने क्या शो करा है? मैंने शो करा है कि आपका सिस्टम जो है वो 4 प्रोसेसेस से अंडरगो कर रहा है, प्रोसेस 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 से 1, राइट. एंड इन प्रोसेसेस के दौरान आपको ये 3 पैरामीटर्स फाइंड करने हैं. सबसे पहला है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, देन चेंज इन वर्क डन और वर्क ट्रांसफ़र एंड हीट ट्रांसफ़र, राइट. तो सबसे पहले चेंज इन इंटरनल एनर्जी का मैं आपको बताऊं. चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज मास इनटू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. ये हमेशा 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 चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला रहता है, और ये फार्मूला कोई भी प्रोसेस हो, किसी भी टाइप का प्रोसेस हो, आइसोथर्मल हो, आइसोकोरिक हो, आइसोबारिक हो, एडियाबैटिक हो, आप ये फार्मूला लगा के हमेशा चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, आप कहेंगे सर चेंज इन इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होगी? तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्योंकि टेम्परेचर सेम रहता है तो T2 माइनस T2 हो जाएगी या T1 माइनस T1 हो जाएगी, और उस कंडीशन में ही ज़ीरो होगा. बट हमारा अभी जो है कोई भी आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, यहाँ पर हमारा प्रोसेस अलग अलग हैं, तो हम वो देखते हैं. सबसे पहला प्रोसेस 0 से 1 जो है हमारा क्या था? हमारा 0 से 1 था आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, राइट. 0 से 1 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन. मैंने क्या कहा? कोई भी प्रोसेस हो MCV फाइनल टेम्परेचर यानी कि T2 माइनस T1, राइट. तो आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गया. देन क्या है? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस. आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में नो अमाउंट ऑफ हीट विल बी ट्रांसफर्ड, तो इसीलिए इस प्रोसेस के दौरान, प्रोसेस 1 से 2 के दौरान जो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हुई है मैंने उसमें क्या लिखा? उस ब्लॉक में 0, राइट. एंड
ये वैल्यू कहाँ से मिली मुझे, ये वैल्यू जो चेंज इन वर्क डन की वैल्यू है या अमाउंट ऑफ वर्क ट्रांसफ़र की जो वैल्यू है वो मुझे कहाँ से मिली, तो वो मुझे मिली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से, जो कि कहता है कि फॉर एनी प्रोसेस, बीट प्रोसेस 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, any process, you can consider any process and the amount of heat transfer will be the amount of work done during that process and change in internal energy, right? So if the amount of heat transfer is 0, then the change in internal energy will be equal to minus of the work transfer, or the work transfer will be equal to minus of the change in internal energy. इसीलिए जो change in internal energy का फॉर्मूला था मैंने यहाँ लिखा और उसके आगे मैंने एक माइनस का साइन लगा दिया. ओके, सो दिस वाज फॉर प्रोसेस 1 से 2. नाउ फॉर प्रोसेस 2 से 3 आप देखें, प्रोसेस 2 से 3 के लिए क्या होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस था ये. आइसोकोरिक के लिए क्या था, वॉल्यूम सेम, एंड इफ द वॉल्यूम इज सेम देन वर्क डन इज 0. अब भी जस्ट हमने डिस्कस करा है पिछली स्लाइड पे कि वॉल्यूम इज सेम तो वर्क डन इज 0. तो अगर वर्क डन 0 and since the change in internal energy is always mcv final temperature minus initial temperature, here final point is 3, initial point is 2, so therefore the work the heat transfer will be equal to what, equal to the amount of change in internal energy, right, because work done is 0. हाँ, then similarly process 3 से 4 exactly same हुआ है, कैसा, जैसा कि आपका process 1 से 2 था. यहाँ पर भी आप देखें हीट ट्रांसफ़र 0 है क्योंकि दोनों आइसेंट्रोपिक प्रोसेस थे. यहाँ पे भी हमेशा की तरह वही करा है हमने, mcv T4 माइनस T3 यानी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, और ये इसका नेगेटिव साइन के साथ आया है वर्क डन में. ठीक है, एंड प्रोसेस 4 to 1, प्रोसेस 4 to 1 इज़ एग्जैक्टली सिमिलर एज प्रोसेस 2 से 3. इसके अंदर आप देखेंगे तो वर्क डन 0 करा है क्योंकि अगेन आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है. एंड हमने देखा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र. वाई, बिकॉज ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. ओके, तो दिस टेबल इज टेलिंग यू दैट आप पूरी साइकिल के किसी भी प्रोसेस को उठा लें, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 to 1, एनी प्रोसेस, आप चारों में से कोई भी प्रोसेस उठा लें, और अगर उस प्रोसेस में मैं आपसे कह दूं कि बताइए प्रोसेस 3 से 4 में वर्क डन कितना है, तो आप यहाँ से टेबल से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं वेरी इजीली. ओके, नाउ एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल. यस, एफिशिएंसी इट्स एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर. हमने जब भी कोई साइकिल पढ़ी तो हमने उसकी एफिशिएंसी निकालने की हमेशा कोशिश करी. अगेन इसकी भी एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करेंगे. हमें मालूम है, याद है कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है. एफिशिएंसी इज ऑलवेज आउटपुट अपॉन इनपुट, दैट द अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट द सिस्टम इज डूइंग डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ हीट दैट यू आर सप्लाइंग टू इट, राइट. तो वर्क नेट डिवाइडेड बाय Q1, एंड वर्क नेट इज नथिंग बट हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड. ये हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में क्लियरली देखा था, डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड. ओके, तो दिस इज़ एन ईजी फार्मूला. यही फार्मूला हम हमेशा लेते हैं और इसी की मदद से हम हमेशा सबकी एफिशिएंसी निकालने के लिए स्टार्टिंग यहीं से करते हैं. तो अगर अब मैं ऊपर टेबल में देखूंगा तो मेरे पास Q1 और Q2 की वैल्यू अवेलेबल है. ये देखिए, ये मेरे पास है Q1, राइट, बिकॉज दिस वॉज द हीट सप्लाइड Q1, एंड दिस इज Q2 बिकॉज दिस वॉज द हीट rejected, mcv into T3 minus T2, mcv into T1 minus T4. ओके, तो मैंने देखी T1 माइनस T4 या वही यहाँ माइनस साइन था, राइट. तो इनकी वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट करी. जब आप वैल्यू पुट करेंगे और LCM को ब्रेक करेंगे यहाँ पे, तो Q1 अपॉन Q1 विल बी 1 एंड Q2 अपॉन Q1 यानी कि हीट रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड, राइट. ये ऐसा हो जाएगा ना, 1 माइनस Q2 बाय Q1, है ना, ऐसा हो जाएगा ये LCM ब्रेक करने पर. एंड Q2 की वैल्यू जो है अभी हमने देखी क्या थी. Q2 की वैल्यू वाज mcv T1 माइनस T4 एंड यहाँ पे mcv T3 माइनस T2. तो ये वही मैंने वैल्यू रखी, mcv T4 माइनस T1 एंड T3 माइनस T2. आप कहेंगे कि सर यहाँ पे आप कह रहे हैं T3 माइनस T2 और यहाँ T3 माइनस T2 लिख रहे हैं, बिल्कुल सही है. लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हैं कि T1 माइनस T4 और यहाँ पर आप लिख रहे हैं T4 माइनस T1. ये बिल्कुल गलत है. ये बिल्कुल गलत नहीं है. क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये है अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड, और जब भी हीट रिजेक्ट करी जा रही होती है सिस्टम से तो साइन कन्वेंशन यूनिट 1 हमें मालूम है क्या होता है, दैट विल बी नेगेटिव. तो इसीलिए इसको माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करा गया है, राइट. तो इसीलिए T1 माइनस T4 की जगह T4 माइनस T1 हो गया. तो एफिशिएंसी का बेसिक फार्मूला ये आ गया है.
अब इसमें से अगर मैं कहीं से T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T3 माइनस T2 की वैल्यू ढूंढ लाऊँ तो वो चीज़ें यहाँ सब्सटीट्यूट करके मैं एफिशिएंसी को निकाल सकता हूँ। ओके, तो मूविंग ऑन, मैं देखूंगा कि भाई प्रोसेस जो है मेरा, अगर जो एडियाबैटिक प्रोसेस था या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस था, अगर उसे कंसिडर करूं तो मुझे पता चलता है कि आपने ये फॉर्मूला यूजुअली सुना होगा, पी वी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, राइट। ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए रहता है। जैसे कि हमने देखा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम इज कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए प्रेशर इज कांस्टेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए टेम्परेचर इज कांस्टेंट, एंड फॉर एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस दिस क्वांटिटी इज कांस्टेंट, यानी कि पी वी की पावर गामा इज कांस्टेंट। तो दैट मीन्स P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, राइट। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस जो है वो आइसेंट्रोपिक था, 1 से 2 भी आइसेंट्रोपिक था और 3 से 4 भी आइसेंट्रोपिक था, है ना। तो 3 से 4 प्रोसेस को ले रहा हूँ मैं, और पी वी के रिलेशन नहीं देख रहा हूँ, बल्कि वी की जगह पे मैं MRT सब्सटीट्यूट कर दूंगा, MRT ओवर P सब्सटीट्यूट कर दूंगा, या सॉरी P की जगह पे मैं MRT ओवर V सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है जो कि P और V के टर्म्स में है, ये P और V के टर्म्स में से हट करके ये अब आपका T और V के टर्म्स में हो जाएगी, और यही वो इक्वेशन है कि भाई T3 बाई T4 इज इक्वल्स टू V4 बाई V3 की पावर में गामा माइनस 1। दिस इज द रिलेशनशिप फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, है ना। अब मुझे ये मालूम है कि यहाँ पे प्रोसेस 2 से 3 जो है वो आइसोकोरिक प्रोसेस रहा था, एंड आइसोकोरिक का मतलब कि वॉल्यूम एट 2 वाज इक्वल टू वॉल्यूम एट 3, तो दैट इज़ वाई इस वॉल्यूम 3 को मैं वॉल्यूम 2 से रिप्लेस कर सकता हूँ, राइट। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे ये देखिए ये रिलेशन मिल रहा है कि T3 बाई T4 इज इक्वल्स टू T3 बाई T2 इज इक्वल्स टू T4 बाई T1। ये कैसे मिला? बिकॉज जैसे मैंने यहाँ पे T3 बाई T4 करा था, इसी तरीके से मैं क्या कर सकता था, मैं कर सकता था T1 बाई T2 इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू V2 बाई V1 की पावर में गामा माइनस 1, क्योंकि ये प्रोसेस भी आपका आइसेंट्रोपिक ही था, राइट। जिस तरह ये प्रोसेस आइसेंट्रोपिक था उसी तरह ये प्रोसेस भी आपका आइसेंट्रोपिक था, और दोनों प्रोसेस सेम रिलेशन फॉलो करेंगे, एंड देन V3 इज इक्वल्स टू V2 एंड V4 इज इक्वल्स टू V1। तो इसको जो है इन दोनों को आपस में सब्सटीट्यूट करा जा सकता है। आप इसे सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि T3 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू T4 बाई T1। ओके, तो यहाँ से इन दोनों को यूज़ करके T1 बाई T2 और T3 बाई T4 को यूज़ करके हमने ये रिलेशन निकाला, एंड इस रिलेशन को निकालने के बाद मैं आगे जाऊँ तो अब मैं देख रहा हूँ कि ये जो रिलेशन है T3 बाई T2 इज इक्वल्स टू T4 बाई T1, इसके साइड में से दोनों में से -1 कर देता हूँ। अगर मैं ये देखिएगा यहाँ पे भी मैंने -1 करा, यहाँ पर भी -1 करा, कोई गलती नहीं। इक्वल टू के दोनों साइड हम जैसा एक तरफ ऑपरेशन लगा रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, वैसे ही दूसरे साइड भी लगा दें अगर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इक्वल टू का साइन फिर भी होल्ड करता है ना। -1 लगा करके एलसीएम लिया मैंने, और मैंने देखा T3 माइनस T2 बाई T2 एंड T4 माइनस T1 बाई T1, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो ये हो जाएगा आपका T1 बाई T2। दिस इम्प्लाइज दैट T1 बाई T2 विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T3 माइनस T2, राइट। तो अब ज़रा देखिए T4 माइनस T1 T3 माइनस T2, T4 माइनस T1 T3 माइनस T2, यानी कि ये जो एफिशिएंसी वाला फार्मूला है, इस एफिशिएंसी वाले फार्मूले में इसको 1 माइनस दिस क्वांटिटी की जगह सिर्फ 1 माइनस T1 बाई T2 लिख सकते हैं, है ना। तो वो एफिशिएंसी 1 माइनस T1 बाई T2 हो जाएगी, बट 1 माइनस T1 बाई T2, T1 बाई T2 इज नथिंग बट V2 बाई V1। अभी आपने यहाँ कहा है ना, T1 बाई T2 इज नथिंग बट V2 बाई V1 की पावर में गामा माइनस 1, राइट। तो V2 बाई V1 की पावर में गामा माइनस 1, एंड V2 बाई V1 इज व्हाट, V2 बाई V1 इज 1 अपॉन कंप्रेशन रेशियो, दैट मीन्स V1 बाई V2 इज कंप्रेशन रेशियो। हमने लास्ट क्लास में भी कंप्रेशन रेशियो देखा था। कंप्रेशन रेशियो इज नथिंग बट वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कंप्रेशन। तो दिस वाज योर कंप्रेशन रेशियो, है ना।
तो इसको मैं कंप्रेशन रेशियो से रिप्लेस कर दूंगा, तो T1/T2 को मैं लिख सकता हूँ 1 कंप्रेशन रेशियो की पावर में गामा-1, और इस चीज़ को मैं ले जा करके अगर अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में यहाँ सब्सटीट्यूट करूँगा तो मेरी एफिशिएंसी की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी, जो कि एफिशिएंसी अभी तक आप इस तरह से लिख रहे थे, उस एफिशिएंसी को अब आप इसे रिप्लेस करके लिख सकते हैं 1 - 1/r की पावर में गामा-1, राइट. दिस विल बी योर फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ एफिशिएंसी फॉर ऑटो साइकिल. एंड गामा इज़ द एयर इंडेक्स. एयर इंडेक्स गामा की वैल्यू क्या होती है? 1.4. ठीक है. दिस इज नथिंग बट गामा इज इक्वल्स टू CP/CV, राइट. तो इसकी वैल्यू जो है वो है 1.4, एंड 1.4 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1. तो सिंस एयर इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1, therefore the efficiency of the Otto cycle will only increase with the increasing compression ratio. तो आप ये कहेंगे कि ये एफिशिएंसी जो है इट इज़ ओनली अ फंक्शन ऑफ व्हाट, सिंस द गामा इज कांस्टेंट. क्योंकि गामा कांस्टेंट है तो ये एफिशिएंसी किस पे डिपेंड कर रही है? एफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशन रेशियो पे डिपेंड कर रही है, राइट. और यानी कि कंप्रेशन रेशियो चेंज करते जाओगे एफिशिएंसी चेंज होती जाएगी. अब कंप्रेशन रेशियो को कम करेंगे या बढ़ाएंगे, तो ये बता रहा है एक्सप्रेशन कि इस तरह से डिपेंडेंसी है इन दोनों की कि अगर आप कंप्रेशन रेशियो को इंक्रीज़ करेंगे तो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी अपने आप इंक्रीज़ होने लगेगी. However, in actual engine the compression ratio cannot be increased indefinitely. यानी कि ये कह रहे हैं कि असली इंजन्स के अंदर कंप्रेशन रेशियो को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता. अदरवाइज़ आप ये कहोगे कि जितना कंप्रेशन रेशियो बढ़ाओ एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है, तो बढ़ाते चले जाओ, बट इनडेफिनेटली नहीं बढ़ा सकते. क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि अदरवाइज इट वुड लीड टू अनकंट्रोल्ड एंड स्पॉन्टेनियस कंबशन, एंड सच अनकंट्रोल्ड एंड स्पॉन्टेनियस कंबशन आर नोन एज नॉकिंग इनसाइड द इंजन सिलेंडर. नॉकिंग के बारे में हम आगे और भी पढ़ेंगे, बट दिस इज अ प्रोसेस that is caused due to the uncontrolled combustion of fuel air mixture inside the cylinder, and this happens only because compression ratio of the cylinder is much more higher and self ignition is taking place, right. So this is what we had to see in the Otto cycle, and I think the Otto cycle is cleared, and hopefully in the next class we will be discussing some more things over this Otto cycle in the discussion session. So after the video you make your points that what are the problems that you're facing in the video and what are the doubts that you still have. So in the discussion class we will consider your doubts and we will see what we can do, right. Okay, so thank you very much and best of luck. नरगिस सर हो गया.